इसलिए जो भी नींद की नीरे रखिए, कहते हैं ना, तो बिना साबुन तेल के हमें साफ कर देंगे वो। Being a kind of profession I'm engaged in, youth के साथ और students के साथ बहुत interaction रहता है, तो उनका एक common question होता है how to deal with overthinking. Immerse in nature, that will help you to stop overthinking. डूबता हुआ सूरज को देखें, चिड़िया उड़ रही है उसको देखें, पेड़ पौधों को थोड़ा पानी दें। Gurudev, how one can differentiate between true love and attachment? When love becomes little sour, then you say it is attachment. Gurudev, how to handle criticism in a healthy way? जब भी कोई आलोचना करता है तो उसमें बहुत बुरा लगता है, हर्ट भी महसूस होता है। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपके बड़े मित्र ही होना चाहिए। क्यों? गुरुदेव, स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या डिवोशन, स्पेशली न्यू बिगनर्स के लिए? डिवोशन हो तो डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं है। आजकल ये डिबेट बहुत चल रही है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ऐसे भी कहते हैं कण कण में भगवान है, तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या रेपिस्ट, टेररिस्ट, मर्डर जो इविल लोग हैं, क्या उनमें भी Gurudev, today we have with us Dr. Shubha, a professor in chemistry and a patent holder for the invention of flame retardant cotton fabric, for which she has been recognized by the government of Haryana. She is the author of the book Power of Forgiveness and has recently begun her journey as a podcaster through her YouTube channel Pathway of Healing, where she shares reflections on healing and inner growth. Pranam Gurudev. हाँ, Feeling very grateful. Thank you so much for this opportunity. Being a kind of profession I'm engaged in, youth के साथ और students के साथ बहुत interaction रहता है, और उनका एक common question होता है how to deal with overthinking. इस एज ग्रुप में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर होता है, करियर बनाने का प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज़, हार्मोनल चेंजेस। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कैसे डील करें विद ओवरथिंकिंग? अब क्या हो रहा है? कुछ पास है ना, अब क्या हो रहा है, इस तरह से हम सुनने का, देखने का जब एक इच्छा उठती है तब सोचना कम होता है। तो ये करना चाहिए हमें, प्रकृति को देखें। सूरज डूब रहा हो तो सूरज, डूबता हुआ सूरज को देखें, चिड़िया उड़ रही है उसको देखें, पेड़ पौधों को थोड़ा पानी दें। छोटी छोटी कामें करने लगते हैं तो सोचना कम होता है। ये पहली बात। ओवर थिंक कम करने के लिए प्रकृति के साथ हो लेना। यू शुड इमर्स इन नेचर, दैट विल हेल्प यू टू stop overthinking, number one. Second, do exercise. Get on the treadmill and run. If you can't go in Delhi and Mumbai, outside anywhere, or if possible, go in the park and run fast. If when you are running, you can't think, right? Your brain gets a break. Second. Third is pranayam. Do a lot of Bhastrika pranayam and then sit and relax. You will feel you are getting over overthinking. Fourth thing, dance, sing and dance. You know, as a baby you came into this world singing. Only later on you start speaking. Okay? Fifth thing is see life from a bigger perspective. Have a scientific temper in your mind. Look what is happening. You know, your body has 30 trillion cells. Think about it. You know, expand your thinking. Your thinking is all limited to what will happen to me or how will I get my career. Come on, wake up and see this whole universe is so big. Whatever you do here doesn't matter at all. Right? You are just a speck of dust in the whole universe. And your time is like a bubble in the water. Billions of years this earth has been here, and how long you are going to be here? 60, 70, 90 years and it will be gone. Like you are like that soda bubble in the drink you drink, you know, soda. What is that? Coca-Cola, something, fizzy drink. You know, the bubbles come in it. How long do the bubbles stay? That's all is your life is.
when you think in this philosophical manner, overthinking will simply vanish. Next. Gurudev, how one can differentiate between true love and attachment? When love becomes little sour, then you say it is attachment. So when love becomes a pain, you say it is attachment and you want to get out of it because it is giving you pain. And love with ignorance will lead you to pain sometime or other. Love with wisdom will bring bliss in life. Next. गुरुदेव, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म इन अ हेल्दी वे? जब भी कोई आलोचना करता है तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है, हर्ट भी महसूस होता है, तो तब कैसे, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड? अरे भाई सुनो, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो आपको आपके बड़े मित्र ही होना चाहिए. क्यों? दे आर योर फ्रेंड्स. दैट इज वाई दे आर टेकिंग देयर फ्रेंडशिप एट रिस्क. They're putting their friendship at risk and then telling you. They know if they tell you wrong things, criticize you, you will not like it. But they are so kind-hearted or they feel so much for you, that's why they are telling you, so that you can improve. So you should thank them. But if their criticism is coming out of their own jealousy or their own anger or some, then you should know they are very stressed out. When people are stressed, they don't compliment anybody, they only criticize. Then when you know they are stressed, you should be compassionate for them. Because you don't blame someone who is not well. घर में कोई किसी को वो बीमारी है, वो बीमार लोग कुछ तो बकते रहते हैं और उन पर गुस्सा थोड़ी ना करते हैं. समझते अरे ये बीमार है, थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ऐसे समझना चाहिए. इसलिए जो भी निंदक नीरे रखिए, वो कहते हैं ना, वो बिना साबुन तेल के हमें साफ कर देंगे. वो कोई निंदा करते हैं, अपमानित करते हैं करके उनसे भागना नहीं चाहिए हमें. वो हमारी कमज़ोरी है. हम एकदम स्थिर हो जाएं. हमारा मुस्कान का यही कसौटी है, कितना मजबूत आपका मुस्कान. कोई भी निंदा करे, कुछ भी करे, अपना शांत रहे. इसीलिए तो ये सब साधना करना आवश्यक है. गुरुदेव, स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या डिवोशन, स्पेशली न्यू बिगनर्स के लिए? डिवोशन हो तो डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं है. डिसिप्लिन की कब आवश्यकता है? जब जानते हैं ये हमारे लिए अच्छा है मगर मन इधर उधर भटक रहा है, तब थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने से काम बन जाता है. जैसे बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं उनको दंत मंजन कराने के लिए माँ बाप ले जाते हैं उनको तो सब करना नहीं है. नहीं, वो तो सहजता में है नहीं. कोई भी जानवर दंत मंजन नहीं करता, मगर बच्चों को हम सिखाते हैं ऐसे ऐसे दंत मंजन करो, कराते हैं, फिर वो आदत बन जाती है तो फिर वो बोझ नहीं लगता. इसी तरह से डिसिप्लिन ऐसा ही है. माने भोजन का कोई टाइम, इस टाइम पर खाना खाएंगे, ये अपना डिसिप्लिन कर लेते हैं. या दिन में 2 बार खाएंगे या 3 बार खाएंगे जब भी, तो उस डिसिप्लिन फॉलो करने से क्या होता है? अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है. स्वास्थ्य माने सब तरह की स्वास्थ्य, मन का भी स्वास्थ्य ठीक होता है और शरीर भी ठीक रहता है, तंदुरुस्त रहता है, मन भी ठीक रहता है. तो इसलिए ये डिसिप्लिन आवश्यक है. आप मान लो सड़क में एक डिसिप्लिन है, हाईवे में क्या, लेफ्ट पे ड्राइव करना, कीप लेफ्ट. कोई बोले ये सब डिसिप्लिन मेरे को पसंद नहीं, मैं लेफ्ट हो राइट हो कहीं भी चलाऊँ, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा.
तो ये कुछ कुछ डिसिप्लिन हमें अपने आप जीवन में रखते हैं, और वो बोझ नहीं लगेगा जब उसको हम खुद के डिसिप्लिन कोई और हम पर थोपेंगे तो हमें वो बोझ लगेगा। तो हमें इन दोनों को लेके चलना चाहिए। डिसिप्लिन डिफेंड्स द फ्रीडम। We often think freedom and discipline are opposite. No, it's the discipline that gives us freedom. And you are free, when you are freely accept discipline, it is no longer a burden on you. आजकल ये डिबेट बहुत चल रही है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ऐसे भी कहते हैं कण कण में भगवान है। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या रेपिस्ट, टेररिस्ट, मर्डर, जो इविल लोग हैं, क्या उनमें भी भगवान होते हैं? अच्छा, पहले भगवान क्या है ये समझो। व्हाट इज गॉड, डिफाइन तो करें। भगवान माने चेतना, आकाश जैसे कॉन्शियसनेस जिसमें सब कुछ होता है। तो भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, कहाँ दिखते हैं? हाँ? कहते ईश्वर है सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट होते हैं। आपके घर में दीवाल है, दीवाल के पीछे भी आकाश है, दीवाल के पीछे भी सूरज है, मगर सूरज दिखता सिर्फ खिड़की में है ना, दिखता खिड़की में। ये नहीं कह सकते दीवाल के पीछे नहीं है। ऐसे ये सब गलत काम करते, उनके भीतर भी भगवान है मगर सोया हुआ है। वो भगवत्ता, मानवता सोई हुई है, भगवत्ता सोई हुई है उनमें, उसको जगाना है। इसलिए वो गलत काम कर, जो भी व्यक्ति गलत काम करता है उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए वो गलत करते हैं। कोई भी बच्चा इस दुनिया में बुरा बच्चा बन के नहीं पैदा हुआ है, दुष्ट कोई नहीं पैदा हुआ है। हर आदमी, हर इंसान एक प्रेम का पुतला बन के आया है, खुशी की पवारे बन के आया है, मगर उसका परिस्थिति, वातावरण, नासमझी के कारण जो भी काम वो कर देता। ये लोग क्या है, उनको अपना ही सुख लेना है, दूसरों को इससे दर्द पीड़ा हो रही वो केयर नहीं करते। जो दूसरों को लूटते हैं वो भी यही करते हैं। अपराध, किसी भी तरह का अपराध जो करता व्यक्ति, वो संवेदनशील नहीं है, इसीलिए अपराध करता है, ना खुद के प्रति ना दूसरों के प्रति। इसलिए वो सब काम, क्रोध, मोह, ये तीनों पाप कराता है लोगों से। मगर ये दुआ जैसा है, इसके भीतर जो व्यक्ति है उसमें भी भगवान है। ये बात समझ में आई ना। एक डायरेक्टर होता है, मान लो, वो डायरेक्टर अपने मूवी में जो भी है या अपने ड्रामा में सबको समान रूप से तो ट्रीट करता है ना। खलनायक को भी, हीरो को भी, विलन को भी वो उतना ही पैसा देते हैं, मगर उनका पात्र बाहर अलग अलग होता है। ये गहराई से समझ में आता है। भगवान है सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र मतलब सब जगह समान रूप से हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट होते हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव।